हेलो गाइस, माय नेम इज़ जीत देवलाल एंड आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस ट्रेनर। और आज हम लोग आए हैं मॉल में। वी विल बी हैविंग इंटरेक्शन विद ऑल द पीपल अराउंड और हम जानेंगे दैट हाउ मच पीपल आर अवेयर अबाउट देयर हेल्थ एंड फिटनेस। बट बिफोर हैविंग द इंटरेक्शन, लेट्स रोल द इंट्रो। Can you just give me a quick introduction? What's your name and what's your profession? I'm Dr. Neenu Kaul. I'm a dermatologist, and that's it. You right now practice dermatology? Yeah, I'm in this. Working as an assistant professor in the Department of Dermatology, Sri Mahend Indiresh Hospital. अब्दुल बासित Atul. अब्दुल बासित Abdul. What's your name? Sohib. मैं आर्मी से हूँ था और अभी 18 साल घर आए हुए होंगे मुझे। अच्छा, आप 18 साल पहले रिटायर हो चुके थे? हाँ, 18 Oh, साल very हो गए। nice. My name is Harsh and by profession I'm an auditor. You're an auditor? Yes. You did your CA? No, technically not. I'm an MBA but I work as a consultant, audit consultant. Okay. So guys, I'm a fitness trainer. So as per my understanding, एक healthy और fit life के ना 3 basic pillars होते हैं. Like if you are doing good workout, if your nutrition is good and if your sleep is on point, तो आप एक healthy individual कहलाएंगे. Do you agree with this? Yes. Yeah, correct. So I have like five question for all 3 things. Like मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा वर्कआउट के रिगार्डिंग, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग और स्लीप के रिगार्डिंग. यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. ओके. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द मोस्ट फेवरेट मील ऑफ योर्स जो आपको लगता है कि ये हेल्दी भी है? I would suggest my lunch basically rice and some, as I'm a vegetarian so I eat paneer or tofu. So rice and paneer is a good meal जो आप रोज खाते हो and you consider it as healthy as well. Yes. With a salad it's a complete meal for me. And you? I'm a non-vegetarian, so I'm more of a chicken person. So I'm like whatever kind of chicken it may be. So if you're eating like KFC, it is considered as healthy? No, not KFC and all. Like roasted chicken or something like that, but not KFC and Burger King and Like stuff. chicken is like something which is introduced in your daily meals? Yeah, sort of. See, I do not have much, special preferences, but see, my thing is that I do cheat dieting, but only at the weekends. Rest of the days, my homemade food is my favorite food. It can be rice, it can be dal, anything, but homemade food only. Okay. So like any specific food or meal you want to name which you consider as healthy, at the same time you enjoy it? See, for other people, I can give a huge list. But for myself, it is simple roti and a vegetable. Any mixed vegetable is my favorite. Plus some amount of dal, which gives you proteins, and salad, of course. मेरे हिसाब से तो वेजिटेबल्स है नॉर्मल, आपका क्या बोलते हैं, रोटी सब्जी और रोटी से. सब्जी. रोटी सब्जी इज अ वेरी गुड ऑप्शन मेरा जो आप खाते हैं. जनरली वही है वैसे. और बाकी आपका थोड़ा वर्कआउट भी इम्पोर्टेंट है अर्ली इन द मॉर्निंग. पीनट बटर इट्स लाइक पीनट बटर एंड ब्रेड. जी. तो वो एक अच्छा ऑप्शन है जो आप खा सकते हो. जी जी. And oats also. देखो, भोजन तो बिल्कुल एकदम ऐसे नॉर्मल भोजन लो अपना. तले मले से इससे दूर रहो. बिल्कुल अच्छा भोजन लो, घर का लो. अच्छा, आपका एक पसंदीदा भोजन जो आपको लगता है वो हेल्दी भी है? सुबह ब्रेकफास्ट अपना अच्छा खाओ. तो आप क्या लेते हैं ब्रेकफास्ट में? मैं अपने 4 रोटी खा लेता हूँ सुबह ब्रेकफास्ट में. अपनी सब्जी खा लेता हूँ जम के और 1 कप चाय पी लेता हूँ. आपके हिसाब से 4 रोटी सब्जी और 1 कप चाय एक अच्छा ऑप्शन है ना? बताइए. कभी कभी 1 कटोरी दलिया भी ले लेता हूँ. अच्छा, 1 कटोरी दलिया. उसके बाद 1 कटोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स? Yes. Quickly explain. Proteins are basically muscle building elements of amino acids basically. They help you build the muscle when it gets stirred up or when you are going. Carbohydrates gives you basically energy for day-to-day activities. So I'm a beginner in the workout area. So But still, like protein and carbs is a very basic thing. Do you have any idea क्या होता है इनका difference? How it involves in your body and क्या major difference है इनका?
For protein, I know that protein is basically responsible, or protein helps you recover. It helps in recovery, and I'm not sure for carbohydrates. He's my kind of trainer. He helps me out with this. He helps you with your nutrition and everything. With the workout. All right. Of course, of course. Oh, I'm so sorry. You're a medical professional, so that's a very basic thing. But for the audience, could you quickly explain what is the difference between protein and carbs? Your diet should be balanced. It should contain a lot of proteins, less carbs and less fats. That is the balanced diet. And I think most of the people nowadays know that your diet should contain more of the proteins and less of the carbs and fats. So that. हेल्थ से रिलेटेड जो भी जितने भी वो है कि प्रोटीन हम खा रहे हैं तो पूरे बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें। देखिए, अगर आप जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग टू कोच उनका कहना है कि अगर आप अपनी एक्सरसाइज के साथ अपना प्रोटीन कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिकली अगर मैं बताऊं, आप एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन चाहे तो जीएनसी या फिर अपना फ़िश या फिर आप बॉयल चिकन या आप एग ले सकते हैं विदाउट जर्दी। ठीक है जी, तो ये आपका जो है प्रोटीन कवर कर देंगे। कार्ब्स के लिए आप रोटी ब्रेड वो सब। जी जी जी, ऑल्सो प्रोटीन इसमें बादाम देना चाहिए आदमी को। वो आदमी का जो है उसको कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और सही आवाज़ को भी सही रखता है, हर चीज़ मतलब फिटनेस सही रखता है। जैसे कि आप आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो क्या आर्मी के अंदर भी आपकी मसल्स को एम्फेसिस दिया जाता है कि मसल की कितनी इंपॉर्टेंस है? क्योंकि आप दिन भर कसरत कर रहे हैं, आपकी रूटीन है, आपको ड्यूटी देनी पड़ती है। और शरीर से जितनी एक्सरसाइज लेनी है उतना उसको रिलैक्स देना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितना मतलब उसको वो जिस फिटनेस लोगे उसके साथ उतनी उसी हिसाब से डाइट लेना भी ज़रूरी है और उतना ही रेस्ट। आपका मतलब है कि जितना हम कसरत कर रहे हैं उतना ही इम्पोर्टेंट रिकवरी है। आराम भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम अगले दिन रिकवर हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ मोर हार्मफुल, शुगर और सॉल्ट? I think both should not be taken in excess. Both have their side effects. See, some people are hypertensive, so I don't recommend high amount of salt. Similarly, diabetics or normal people should not take much sugar or the calories. I mean, everything should be taken in a limited amount. But still, like if you have to give a preference, like over sugar or salt, so which one will you consider? Sugar should be taken less. Excuse me, we are recording. Simple, complex carb should be taken more. Simple sugar should be taken less. So, like you'll still say sugar is more harmful than salt? Yeah, it is. दोनों ही है, अपनी अपनी जगह दोनों ही। अच्छा, अगर एक्सेस में लेते हैं तो दोनों। बट अगर लाइक आपके अकॉर्डिंग फिर भी अगर आपको एक चीज़ को पिक करना पड़े तो आप क्या पिक करेंगे, शुगर या सॉल्ट? क्या ज़्यादा हार्म करेगा आपकी बॉडी को? शुगर। शुगर? शुगर है ऑलवेज। शुगर? एनी स्पेसिफिक रीज़न, ऐसा क्यों? शुगर मतलब कि शुगर में एक तो तेज़ाब से छन के आ रही है, सबसे बड़ा जो रीज़न है। हाँ, वो प्रोसेस्ड है तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी कम है और वो एक प्रोसेस्ड केमिकल से बन के आ रही है। ये इवेंचुअली सॉल्ट और शुगर में अगर आप क्या पिक करेंगे कि आपको क्या लगता है ज़्यादा हार्मफुल क्या है आपकी बॉडी? यही है शुगर जी। Sugar. Exactly, to be precise, it's processed sugar. The white refined sugar that we are eating. So Any if specific reason why you pick sugar and not salt? sugar basically is like a dopamine actor. Sometimes in your mind you carve sugar, but you never carve salt in your workout. That's one of the major point. देखो ऐसा है ना, ये तो अपने अपने बॉडी पर डिपेंड करता है। हम तो न तो शुगर को सॉल्ट मानते हैं न शुगर को मानते हैं। हम दोनों चीज़ स्ट्रॉन्ग खा लेते हैं, कोई परवाह नहीं रखते हैं। सोचते हैं हमने शुगर ज़्यादा खा लिया तो अपने रनिंग करो, एकदम उसको बाहर निकालो और सारा पसीने में उसको बहा दो। नमक ज़्यादा ले लिया, अपना उसका भी पानी पियो अपना। तो आप बिलीव करते हैं कुछ भी खाओ बट आप कसरत से सब कुछ बर्न कर सकते हैं? शरीर को अपना मेहनत दो, तुम कुछ भी खाओ, वो परहेज किसी चीज़ पे नहीं करना चाहिए। पर देखिए, जैसे आप तो आर्मी से बिलोंग करते हैं और मैं एक ऐसा हूँ जो अपनी फिटनेस रूटीन को हमेशा रखता है, पर इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्कआउट रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं। तो वही बीमार भी रहते हैं। हाँ, तो उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे शुगर और सॉल्ट को लेके? देखो मैं तो करता हूँ, अब मैं कुछ वो उनको दवा में नाम की तो चीज़ बन लो बोलता हूँ किसी से भी। भाई अपने शरीर को, बॉडी को मेंटेन रखो, कोई चीज़ तुम्हें लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक पहेली है, आपको गेस करना है कि ये कौन सा फूड आइटम है। ठीक है, तो मैं मुलायम मक्खन वाला
और फिल्मों में शौक से दिखाई देने वाला। वैसे तो हूँ पीला और शर्मीला, पर गरम किया तो क्रंची और चमकीला। गेस हुआ है, बताओ मैं कौन? You can try. फिल्मों में हम इसे बहुत ज़्यादा देखते हैं अपने अराउंड पीपल। Butter? बटर इज़ अ पार्ट ऑफ इट, वी यूज़ बटर टू कुक इट। Ghee? वैसे तो हूँ मैं मुलायम और शर्मीला, बट अगर मुझे पॉप किया तो मैं हूँ चमकीला एंड क्रंची। इट इज़ पॉपकॉर्न। अच्छा, राइट। ओके। पीनट बटर ही हो सकता है क्योंकि क्रंची भी होता है वो और येलो कलर में भी होता है। बट फिल्मों में नहीं दिखता ना, फिल्मों में आसपास दिखने वाला। आप मूवी जाते हो तो आप उसको पॉप करने के बाद वो गोल्डन हो जाता है। गेस करो। पॉपकॉर्न, वेरी नाइस, गुड आंसर। मूवीज़ जाते हो तो मूवीज़ में ये सबका कंपेनियन होता है, सबके साथ दिखता रहता है, और अगर हम इसको पॉप करते हैं तो ये बड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाता है। घर पे भी हम इसको काफ़ी खाते हैं। ये पॉपकॉर्न। करेक्ट, दैट्स द आंसर। अच्छा, अब क्योंकि आप बहुत फिट लग रहे हैं मुझे, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस वर्कआउट के रिगार्डिंग पूछूंगा, ठीक है? आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ वर्कआउट? देखो, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जिम जाते हैं, सो व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्कआउट अकॉर्डिंग टू यू? अगर मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊं, सबसे बेसिकली विस्तार से नहीं, फटाफट से बताना है। नहीं, नॉर्मली मैं शॉर्टली बताऊंगा। एज अ लाइक आई एम अ मुस्लिम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल परफॉर्म द सला 5 times. That is your prayer, right? Yes, that is also the workout of our body. After that, you can join the gym. Any exercise you can do, but आपके पास जितनी टाइम आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उतनी देर आपको किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। लाइक ए फ़ोन पिकअप करना और लाइक जो है अपना माइंड जो है डिस्टर्ब रखना या कुछ सोचना। बस 1 घंटा आप जाएं जिम में और अपने लिए सोचें और अपने लिए जो कर सकते हैं वो करें। यू मीन टू से कि लिव इन द प्रेजेंट। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो देन यू डोंट थिंक अबाउट अदर थिंग्स। आप वर्कआउट कर रहे हैं तो वर्कआउट ही कीजिए, चाहे आप आधे घंटे ही करें। करेक्ट। I think I do sometimes the simple yoga or I do the core exercises to maintain my tummy. That is the part where I think my fat gets easily deposited. So that is the I do not do running or I don't go to gym because I don't have so much time. But 15 or 20 minutes of simple exercises at home, I think that is sufficient for you. सबसे पहले अपना भाई, आप वर्किंग तो अगर आदमी रूटीन में कर रहा है, सबसे पहले अपने बॉडी को वार्म अप करो, यानी कि दौड़ लो, उससे पसीना निकाल लो। उसके बाद हर बॉडी के हर रंग पट्टे को थोड़ा एक्सरसाइज दे दो और उसके बाद रिलैक्स हो जाओ। अपना सही डाइट करो, नहाओ धो, बस रूटीन दिनचर्या होना चाहिए आदमी का, रूटीन से। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक रूटीन, और उस रूटीन को डिसिप्लिन से फॉलो करना। अच्छा, आप क्या प्रेफर करेंगे, जिम वर्कआउट्स या फिर आउटडोर वर्कआउट्स या होम वर्कआउट? नहीं, जिम वर्कआउट। No, I do it in my home. You prefer your home only? Okay. घर पे। अच्छा, आउटडोर भी चलेंगे। आपको लगता है कि सर घर पे वर्कआउट करना हम लंबे टाइम तक कर सकते हैं, कंसिस्टेंट रह सकते हैं घर पे वर्कआउट? डिपेंड करता है कि आप जॉब में हो या फिर घर में हो। जॉब मतलब 12 घंटे अगर आप घर में हैं तो फिर आप घर के। आपकी बात सही है, सबसे सूटेबल टाइम घर का होता है, बट जनरली क्या होता है कि हम लोग जब घर पे रहते हैं तो मे बी कभी पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपके केस में शायद आपकी बच्चे की प्रायोरिटी आ जाएगी, तो क्या ऐसा रहता है कि आप अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं अपने वर्कआउट के लिए? नहीं होता है, टफ रहता है। हाउ मेनी डेज आप एक हफ्ते में कितने दिन वर्कआउट करते हैं? डू हैव एनी वर्कआउट रूटीन? आपका कोई रूटीन है? हाँ, 4-5 दिन तो है। 4-5 दिन। मैम आपका? मेरा कोई रूटीन नहीं है। बट स्टिल यू लुक वेरी फिट, सो मे बी इट इज़ योर डाइट पार्ट जो आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं नॉर्मली हूँ ही ऐसे कि मतलब कुछ भी खा लो खुली हवा में। खुली हवा में जिम जाम ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। खुली हवा में अपना जो एक्सरसाइज है, जो मज़ा खुली हवा में है वो जिम जाम में नहीं है। हाँ ठीक है, उसको एक्सरसाइज करना, पहले वार्मिंग होने के लिए आदमी को इन्वायरमेंट बन जाता है बेसिकली। हाँ, खुली हवा में वार्मिंग करना आदमी को बहुत ज़रूरी है। वार्म तो वहाँ भी हो जाएगा, जिम में भी आदमी पसीना वहाँ भी निकलेगा, काफ़ी निकलेगा, मगर वो मज़ा नहीं है जो खुली हवा में तुम्हें वार्मिंग हो गए, पसीना निकल के और एक्सरसाइज करोगे। आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम पूरे दिन का जिसमें आपको वर्कआउट करना चाहिए?
अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूं, क्योंकि मैं एज ए बिजनेस मैन, आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, सो मेरे लिए तो टाइम जो है क्या क्या है सर? आप लॉयर भी हैं, ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, बॉडी शॉडी भी अच्छी है आपकी, आप बताइए करते क्या क्या है? अ मैन शुड बी परफेक्ट बाय द ऑल रीजंस। तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी करते हैं? ऑल राइट। तो मेरा मानना है चाहे आप सिक्स पैक ना निकालें, लेकिन बॉडी की पर्सनैलिटी लाइक आप, जैसे आप खुद हैं, होनी चाहिए कि Thank you. अगर आप कुछ पहनते हैं तो आपकी बॉडी में फिट आना चाहिए, ना कि ये कि सबको खोल करके एप्स दिखा सको आप। हाँ, मैं उन्हें बुरा नहीं कह रहा जो लोग एप्स की ट्रेनिंग के लिए। बट स्टिल आप ड्रग अब्यूज़ के अगेंस्ट है, राइट? जी, अगेंस्ट वेरी। बिकॉज इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट कि आप अच्छा दिखोगे, बट आपकी इंटरनल ऑर्गन्स भी फिट रहने चाहिए। जी जी जी। I think it's the early morning when you are fresh, but for me, I don't have time in the morning, so I prefer in the evening when I come from my work. I think at between 7 to 7:30, I think that is for me, it is the suitable time. Otherwise, I think the morning time from 5 to 7 is the best time for workout. But you mean like as per your suitability, you can schedule your fitness, right? मॉर्निंग टाइम टाइम आपके अकॉर्डिंग मॉर्निंग? एनी स्पेसिफिक रीज़न कि मॉर्निंग ही क्यों? मॉर्निंग की जो वाइब्स होती है वो आप देखना, नेचुरल हवा, उसका कुछ अलग ही वो रहता है कि मतलब आपको जो एयर मिल रही है वो बिल्कुल प्योर मिल रही है। ओके, दिन भर में क्या होता है कि क्या बोलते हैं, Pollution आ जाता है, गाड़ी आ रहे हैं, नॉइज़ पोल्यूशन या फिर बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब दिन में इफ़ेक्ट करती है अपने आप को। देखो, सबसे पहले तो मॉर्निंग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। अच्छा, मैं अब आपसे 2-3 क्वेश्चन नींद के रिगार्डिंग पूछने वाला हूँ। सो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे की नींद ज़रूरी है एक बॉडी को हेल्दी रहने के लिए एक दिन में? 7 से 8 घंटे तो 7 to 8 hours? 8 घंटे तो नॉर्मल। As a medically, I think 8 hours is a sufficient sleep for everyone. But you know, we have a so much hectic schedule. Even 7 hours or 6 hours is also sufficient. As per my understanding, medical professionals are like mostly sleep deprived because of the work they are doing, right? Yeah. 7 and 8 hours. क्या आप वो ले पाते हो? 6 hours only because I am a businessman, so कस्टमर जो है मॉर्निंग में ही परेशान करना शुरू कर देते हैं, और जाहिर है सबको लालच होता है 2 पैसे कमाने का, तो मैं भी आई विल फॉलो द वे। आपको लगता है क्या स्लीप आपके फैट लॉस में हेल्प करती है? नहीं। आपको क्या लगता है सर? स्लीप फैट लॉस तो नहीं, थोड़ा बस ये है थकावट उसमें हो रहा है। रिकवरी बेसिकली, अगर आप थक गए हो तो रिकवर हो जाते हो। बट साइंटिफिकली स्लीप ऑल्सो हेल्प्स इन योर फैट लॉस, क्योंकि जब आप कसरत करते हैं तो आपका फ़ैट लॉस तब नहीं होता है, बट जब आप रेस्ट कर रहे हो तो आपकी बॉडी रेस्ट के दौरान आपके फ़ैट मोबिलाइजेशन करती है, मतलब फ़ैट को बर्न करती है। तो कहते हैं अगर रेस्ट आप ज़्यादा करते हो तो फैट बढ़ता है भी। नहीं, रेस्ट ज़्यादा करने से फ़ैट नहीं बढ़ता है। अगर आप दिन में 10 घंटे भी सो रहे हो बट आपका डाइट अच्छा है तो आपका बॉडी में फ़ैट नहीं आएगा। रेस्ट प्लस गलत खाना प्लस वर्कआउट ना करना, ये मेन रीज़न होता है हमारी बॉडी में फ़ैट एक्यूमुलेट करने का। You know, the more you sleep, the less time you have. Your eyes are searching for food. That is one of the reasons maybe you can cut down your calories. That's a smart answer. Yeah, that is one of the points. You will eat low calorie, like less calories, but at the same time, scientifically, it helps in your metabolism. Yeah. Also, it with the recovery part, and there are a few hormones that wake up when you are in your sleep. When you are asleep, your body metabolism is more. So you eat less, you crave for less things. ऑफ कोर्स, अगर आप प्रॉपर अपनी जो है नींद नहीं ले पाएंगे तो आप एक अच्छी सेहत नहीं बना पाएंगे, और जब आपकी जो है आपको रेस्ट मिलेगा ही नहीं तो आप अपनी बॉडी को रिकवर कैसे कर पाएंगे? फिर तो आपका मसल जो है थका हुआ रहेगा और आपके अंदर वो एनर्जी नहीं आ पाएगी, चाहे आप प्री वर्कआउट ही क्यों ना ले लें उसके लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको इनमें से एक आंसर देना है। आपके हिसाब से व्हाट इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन ऑफ स्लीप? नींद ना आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? नंबर 1 इज़ ओवर थिंकिंग, नंबर 2 आउटसाइड नॉइज़, आपके आसपास हल्ला गुल्ला हो रहा है, नंबर 3 बहुत ज़्यादा रोशनी है आपके कमरे में, या फिर 4 आपका फ़ोन या फिर स्क्रीन टाइम। फ़ोन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ द फ़ोन। और सारी ही खूबी है कि सबकी वजह जो है जड़ है वो फ़ोन है, क्योंकि अब लोग इंस्टाग्राम हुआ या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हुआ जब लगते हैं ना तो उसमें ऐसे खोते चले जाते हैं कि वो अपनी स्लीप को तो क्या याद रखेंगे, वो अपना फ्यूचर ही भूल जाते हैं।
खासकर जहाँ पे इंडिया के अंदर एजुकेशन के लोगों को ज़्यादा कम वैल्यू मिलती है, उनको ज़्यादा मिलती है। जाना मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल मन जाता और मिल रहा है राष्ट्रपति अवार्ड। तो आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि कैसे आप फ़ोन डिस्ट्रैक्शन कम कर सकते हैं? जी ऑब्वियसली मैं ये कहना चाहूँगा कि इस फ़ोन को सिर्फ और सिर्फ आप इतना यूज़ करें जो आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग हो, और अगर आप इसमें कोई मनोरंजन टाइप का या इससे कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप 1 घंटा, ये मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि इससे ज़्यादा ना करें। अपने बिजनेस में, अपनी स्टडी में आदमी को वक्त लगाना चाहिए। फ़ोन आज के टाइम पे तो फ़ोन है, आज के टाइम पे तो फ़ोन है। अच्छा, आपको लगता है फ़ोन सबसे बड़ा परेशानी है हमारी नींद के लिए? बिल्कुल 101। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सोने जा रहे हो और आपने फ़ोन पकड़ लिया और फिर कुछ 3-4 घंटे निकल गए? कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब बोलते हैं कि सोने चलते हैं, ठीक है, थोड़ी देर किसी का मैसेज आ गया, यार देख लेते हैं, उसको देखा, फिर उसमें फिर मन करता है और आगे चीज़ वो चैट करने का या फिर देखने का कुछ, उसके बाद वो नींद ऑटोमेटिक। क्योंकि हमारी जनरेशन के साथ ये बहुत बड़ा इशू है कि फ़ोन के साथ बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं। आपके केस में क्या है मैम, आपको क्या लगता है? मेरा तो ओवर थिंकिंग है। अच्छा, ओवर थिंकिंग इज़ योर बिगिन। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या आपको ओवर थिंकिंग से कम बैक कर सकता है? कि कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं आपके पास जिसे आपको लगता है या आप लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें? अगर मैं कम कर पाती तो मैं अपनी ज़्यादा सो आई विल सजेस्ट कि अगर आप ओवर थिंकिंग का एक बहुत सिंपल और अच्छा तरीका है इज़ टू मेडिटेट बिफोर गोइंग टू बेड। अगर आप सोने से पहले 5 मिनट सिर्फ आँख बंद करके ब्रीदिंग भी करते हैं, सांस भी लेते हैं, सो दैट हेल्प्स अ लॉट। बिकॉज इन माई केस ऑल्सो, क्योंकि मैं काम को लेके बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, आई एम अ पर्सन जो काम को लेके बहुत ज़्यादा सोचेगा। इवन इफ मैं अपना 100% दूंगा तो अगले दिन का मुझे क्या करना है मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ। इन दैट केस इफ़ आई एम ब्रीदिंग वेल सोने से पहले, दैट हेल्प्स मी अ लॉट। सो मे बी दैट कैन हेल्प यू। नहीं, मैं भी यही करती हूँ। अगर मुझे लगता है तो मैं फिर लंबी लंबी सांस लेके फिर जाके सोती हूँ। सो बिफोर एंडिंग दिस, वुड यू लाइक नेम अ पर्सन जिसको आप सजेस्ट करो दैट यू शुड स्टार्ट वर्किंग आउट? यू कैन सी इन द कैमरा। I think that's my daughter. Okay. I always ask her to do some workout, but nowadays the kids are just they are going after the junk food and the PlayStation and the indoor games. They do not go for the outdoor games. So my preference is I start from the home. So it is my daughter first before advising other people around. I really appreciate the fact that you are, this much aware that, you're pushing your small child to, make a fitness routine. He's your husband, right? अच्छा, तो आप अपने husband को सजेस्ट करेंगे और आप? आप किसी को नहीं? मे बी आप इनको सजेस्ट कीजिए और आप दोनों ही एक फिटनेस रूटीन को स्टार्ट कीजिए, राइट? माई फ्रेंड शुएब। अच्छा, शुएब, अब आपको वर्कआउट शुरू कर देना चाहिए। आपके फ्रेंड बोल रहे हैं, ठीक है? डन, प्रॉमिस टू द कैमरा। ठीक है, डन। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू यार, बहुत मज़ा आया आपसे। ठीक है, थैंक यू सो मच अंकल जी हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपका ओपिनियन। एंड आई हैव अ डिफरेंट रिस्पेक्ट फॉर ऑल द आर्मी पर्सनल, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो अभी आर्मी में सर्व कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू। चलिए, अपनाओ, थैंक यू।